بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر حاجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب خطبات ملتان کا پارٹ نمبر 9 صفحہ نمبر 85 سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔ اگر عورت کے اندر علم سیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مرد عورت دونوں پر علم سیکھنا فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں صلاحیت ہے۔ ایک بات بہت زور و شور سے کہی جاتی ہے جو خواتین کے لیے خصوصاً توجہ طلب ہے۔ ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے۔ انہیں پریشانی ہوئی کہ میری کوئی ساتھی تو ہو، تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا پیدا ہوئیں۔ لیکن قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آدم کو علم سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ حوا کی بھی تخلیق ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو۔ 1,24,000 پیغمبران علیہ السلام کی روایت کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تورات، انجیل اور وید کے کچھ حصے میں نے پڑھے ہیں۔ کسی بھی کتاب میں دین کی تکمیل کا تذکرہ نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انسانی ارتقاء اتنا ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی۔ فرمایا، آج کے دن دین کی تکمیل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہو گئے اور دین اسلام ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اب چونکہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، لہٰذا کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھایا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین نے آگے بڑھایا۔ ان کے بعد اولیاء اللہ نے اس مشن کو پھیلایا اور روز قیامت تک اولیاء اللہ اپنی یہ ڈیوٹی پوری کرتے رہیں گے۔ سوال، اللہ تعالیٰ سے کس طرح تعلق قائم ہو سکتا ہے؟ جواب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میٹرک کرنا چاہتا ہوں، کس طرح کروں؟ جواب، اسکول میں جائیں۔ جواب، تصوف سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسکول میں داخلہ لیں۔ جس کلاس میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں یہ تصوف کا اسکول ہے۔ آپ یہاں آئے، تصوف کے بارے میں سنا، کچھ علم ہوا اور آپ میں شوق پیدا ہوگا کہ آپ بار بار آئیں گے تو تصوف کا علم آپ سیکھ جائیں گے۔ سوال، موجودہ دور میں تصوف ہمیں کس قدر فائدہ دے سکتا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے ہم اس علم سے مستفید ہو سکیں۔ جواب، بہت آسان طریقہ ہے اور اس میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا، اسکول بھی نہیں جانا پڑتا، کوئی یونیفارم بھی نہیں سلوانی پڑے گی۔ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، سب کو پتہ ہے آنکھیں اللہ نے دی ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھیں لے بھی سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے اندھے ہیں۔ آپ یہ کیجئے، سونے سے پہلے جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس کو دہرائیں۔ ہم نے گھر دیکھا، اماں کو دیکھا ہے، بچے دیکھے ہیں، بازار دیکھا ہے، دمکتا ہوا سورج دیکھا ہے، رات کو چاندنی دیکھی ہے اور آسمانوں پر ستاروں کی کہکشاں دیکھی ہیں۔ اور آپ جب صبح کو انہیں اٹھیں تو یہ سوچیں کہ اگر ہم اندھے ہو کر اٹھے تھے تو کیا ہوتا؟ اس عمل سے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ آنکھ کی نعمت کی قدر ہوگی۔ اس نعمت کا پھیلاؤ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ لازماً اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو چھوٹی بڑی پریشانیاں اور بے سکونیاں از خود ختم ہو جائیں گی۔ اگر اللہ کی ایک ایک نعمت پر آپ شکر ادا کرنے لگیں تو آپ کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں، شکر کرو۔ شکر کا مطلب ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو استعمال کرو اور استعمال کر کے اس کے نتائج تلاش کرو۔
सोचो कि ये नेमत ना होती तो क्या होता। मसलन आदमी के कान ना होते तो वो क्या करता। रात को सोने लगो तो आँख की नेमत को याद करो कि अल्लाह ताला ने अंधेपन से महफूज रखा हुआ है, उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने माजूर नहीं किया, उसका शुक्र अदा करो। सुबह को उठकर कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक महीना आँख की नेमत को याद करो और एक महीना कान की नेमत को याद करो। एक महीना दिमाग की नेमत को याद करो कि वो इतनी चीज़ें हैं कि याद करके शुक्र अदा करते में 1 साल आराम से गुजर जाएगा। और इंशाल्लाह 12 महीने में अल्लाह से आपका राब्ता कायम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। ख्याल आए बगैर कोई अमल मुमकिन नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में पैरासाइकोलॉजी के मुतल्लिक गुफ्तगू होगी। पैरासाइकोलॉजी या माबद नफ्सियात का रूहानियत में क्या मकाम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे अलूम राइज हैं। इल्म के 3 बाब हैं, तबियात, नफ्सियात और माबद नफ्सियात या फिज़िक्स, साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी। दुनिया में जितने भी अलूम राइज हैं वो किसी न किसी तरह इल्म के इन 3 दायरों के अंदर घूमते हैं। कोई भी इल्म हो, किसी भी शोबे के मुतल्लिक हो, वो इन 3 दायरों से बाहर नहीं है। यानी फिज़िक्स, साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी तमाम अलूम को कवर करते हैं। फिज़िक्स के बारे में आप जानते हैं, साइकोलॉजी के बारे में भी आप जानते हैं। अलबत्ता पैरासाइकोलॉजी ऐसा इल्म है जिसका ताल्लुक बराह रास्त रिसर्च और तहकीक से है। जितनी भी साइंसी इजादात हुई हैं, हो रही हैं या आइंदा होंगी, उनका महज़न और मंबा पैरासाइकोलॉजी है। नफ्सियात की इस्तिलाह में इन 3 दायरों को शऊर, लाशऊर और वराए लाशऊर कहा जाता है। तमाम अलूम और हरकत व सकनात जो इंसान की ज़िंदगी में पेश आते हैं या जिन हरकत व सकनात से कोई इंसान, हैवान, शजर, हजर बाहर नहीं हो सकता, वो शऊर के दायरे में आते हैं। यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए तकाज़े और उन तकाज़ों को पूरा करने के जितने भी हवास हैं वो शऊर के दायरे में आते हैं। शऊर ऐसा दायरा है जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी का अमली मुज़ाहरा करता है। मसलन आदमी पानी पीता है, ये एक अमल है। परिंदे भी पानी पीते हैं, चौपाए भी पानी पीते हैं, दरख्त भी पानी पीते हैं, सब्जियां, तरकारियां भी पानी पीते हैं। ये एक शऊरी अमल हुआ। लेकिन इसके साथ साथ ये बात बड़ी अहम है कि पानी पीने का अमल ज़ाती अमल नहीं है। पानी पीने का ख्याल आए तो पानी पीने का तकाजा पैदा होगा। ये 2 बातें हो गई, पानी पीना और पानी पीने का ख्याल आना। इंसान के अंदर 3 हिस्से पानी है, इसमें कमी हो जाती है तो आदमी पानी पीता है। इनर में कोई एजेंसी है जो उस तरफ मतवज्जा करती है कि पानी पीना ज़रूरी है। उसका नाम हमने प्यास रखा हुआ है। पानी आदमी इसलिए पीता है कि उसे पानी पीने की इतला दी जा रही है। पानी पीना शऊरी अमल है और पानी पीने का ख्याल आना लाशऊरी अमल है। बात पूरी नहीं हुई, अभी 2 बातें सामने आई हैं, पानी पीना और पानी पीने का ख्याल आना। तीसरी बात यह है कि पानी पीने का ख्याल कहाँ से आया। ये तीसरा दायरा है। तीसरे दायरे का नाम वराए लाशऊर है। पानी पीने का ख्याल कहाँ से आया? चूँकि पानी पीने का ख्याल लाशऊर से आया, इसलिए ये लाशऊरी अमल, लाशऊरी इतला या इंफॉर्मेशन हुई। लेकिन असल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वराए लाशऊर है। वजाहत की जाए तो यूँ कहेंगे कि कोई काम उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इस काम को करने से मुतल्लिक आपको इंफॉर्मेशन ना मिले। कोई इंसान उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसे कोई इंसान उस वक्त तक नहीं सो सकता जब तक उसे सोने की इतला ना मिले। सोने की इतला के बहुत सारे तरीके हैं। आपका जिस्म टूटने लगे, आसाब मुज़महिल होने लगेंगे और आपके जहन में ये बात आएगी कि अब सोना चाहिए, नींद आ रही है, रिलैक्स होने की ज़रूरत है।
जब आपको सोने की इत्तला मिलेगी तो आप सो जाएंगे। इसी तरह जब तक कि आपको बेदार होने की इत्तला नहीं मिलेगी, आप बेदार नहीं होंगे। हम ये कहते हैं कि हम रात को सो गए, सुबह को उठ गए। ऐसा नहीं है। हम इत्तला के बगैर सो भी नहीं सकते और इत्तला के बगैर नींद से बेदार भी नहीं हो सकते। ये बात तलबा और तालिबात और उस्ताद इकराम को याद रखनी चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले से आइंदा बड़े बड़े मसाइल हल होंगे। जब भी कोई आदमी सोकर बेदार होता है, उसे यकीनन कोई ना कोई ख्याल आता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप सोकर उठें और आपको कोई ख्याल ना आए। इसकी प्रैक्टिस इस तरह होगी कि जब आप सोकर उठें तो याद करें कि आपको पहला ख्याल क्या आया था। इससे आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उठते ही सबसे पहले कोई ना कोई ख्याल आता है। मसलन हो सकता है चाय पीने का ख्याल आए, हो सकता है दफ्तर का ख्याल आए, और हो सकता है किसी अजीज का ख्याल आ जाए या दुनियावी काम याद आ जाए। ये मुमकिन नहीं कि बेदार होते वक्त कोई ख्याल ना आए। जब हम सोते हैं तो हम उस जोन में दाखिल हो जाते हैं जहाँ शौरी ख्यालात के कबूल होने का सिलसिला मुअत्तल हो जाता है, और जब हम बेदार होते हैं तो शौरी ख्यालात की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी तरह ये दो जोन बन गए। एक में शौरी ख्यालात मुअत्तल हो जाते हैं और दूसरे में लाशौरी ख्यालात मुतहर्रिक हो जाते हैं। कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक दो जोन हैं। एक वो जोन है जहाँ आदमी ख्यालात से आज़ाद हो जाता है। मसलन आप हर वक्त सोचते रहते हैं और परेशान हैं, खुश हैं, लेकिन जब आप सोएंगे तो ख्यालात की यलगार ख़त्म हो जाएगी। यानी नींद में बेदारी के ख्यालात से आदमी आज़ाद हो जाता है। आदमी बेदार होने के बाद फिर उस जोन में दाखिल हो जाता है जहाँ ख्यालात का हजूम है। आप ये सवालात कर सकते हैं कि अच्छे ख्यालात क्यों आते हैं, बुरे ख्यालात क्यों आते हैं, जबकि हर इंसान पुरसकून रहना चाहता है। तो इसको ऐसे ख्यालात क्यों आते हैं कि वो इस्तराब और बेचैनी में मुब्तला रहता है। असल बात यह है कि इंसान दो जोन में रद्दोबदल हो रहा है। एक जोन वो है जहाँ वो ख्यालात में घिरा रहता है, और एक जोन वो है जहाँ वो दुनियावी ख्यालात से आज़ाद हो जाता है। आपने साइकिक केस देखे होंगे। साइकिक केस का मतलब ये है कि कोई इंसान किसी एक ख्याल में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाता है कि उसे दूसरा ख्याल नहीं आता। मसलन किसी को ये ख्याल आता है कि मेरे ऊपर जादू कर दिया गया है, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं है कि जादू हुआ है या नहीं हुआ। बस वो इस ख्याल में मसरूफ़ रहता है कि किसी ने जादू करा दिया है। लेकिन अगर आप इसको स्लीपिंग पिल्स दे दें या नींद का इंजेक्शन लगा दें तो उसे माकूस ख्यालात नहीं आएंगे। ये जितने साइकिक केस होते हैं, इनमें जो दवाएं दी जाती हैं वो तकरीबन सब नींद आवर होती हैं। हीरोइन का नशा ख़त्म करने के लिए एक और नशा देते हैं, जिस नशे से वो हीरोइन के तकाजे को भूल जाता है। नशे की पूरी कैफियत इसके ऊपर होंगी, उसकी राल भी टपकेगी, वो सोने जागने की हालत में भी होगा। अगर मरीज को एक हफ्ते तक सुलाए रखें, एक हफ्ते तक वो हेरोइन नहीं पिएगा। क्यों? इसलिए कि ख्यालात के इंतशार को रोक दिया गया है, उसको इस जोन से निकाल दिया गया है जिस जोन में ख्यालात में इंतशार रहे। इस्तराब है, बेचैनी है, बेसुकूनी है, परेशानी है, वो सोचने पर बेबस है, वो इस सोच को हटा नहीं सकता। स्लीपिंग पिल से वो ये सब भूल जाता है। वो जोन में, दो जोन में इंसान रद्दोबदल हो रहा है। एक जोन बेदारी का है और एक जोन ख्वाब का है। दो जोन में इंसान रद्दोबदल हो रहा है। एक जोन बेदारी का है और एक जोन ख्वाब का है। जब तक इंसान बेदारी के जोन में रहता है, शौर में रहता है, और जब बेदारी के जोन से निकलता है, लाशौर में चला जाता है। अब इस बात को हम इस तरह कहेंगे कि इंसान दो दायरों या जोन में सफ़र कर रहा है। अभी मैंने 3 दायरों का तस्करा किया था। आप कहेंगे 3 से 2 कैसे हो गए? जो दायरा हर वक्त इंसान को किसी न किसी ख्याल में मसरूफ़ रखे वो शौरी दायरा होता है। मसलन एक आदमी रात को 10 बजे सोता है
और सुबह 6 बजे बेदार होता है तो वो 8 घंटे तक सोया है। 8 घंटे तक उसे कोई ख्याल नहीं आया। लोग कहते हैं कि जब हम किताब पढ़ते हैं कंसंट्रेशन की वजह से हमें कोई ख्याल नहीं आया, वक्त का एहसास भी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप ख्याल से आज़ाद हो गए हैं। आपने सारे ख्यालात से खुद को आज़ाद करके किसी एक ख्याल में अपने आप को मसरूफ़ कर दिया। ख्याल तो आया लेकिन बहुत सारे ख्यालात नहीं। कानून, किसी भी ख्याल की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड होती है। 15 सेकंड के बाद एक ख्याल की फ्रिक्वेंसी लहरों की शक्ल में तब्दील हो जाती है। एक बेदारी का ज़ोन है जिसमें आदमी हमा वक्त ख्याल में मसरूफ़ रहता है। इसका नाम कुरान करीम ने दिन रखा है, और जिस जोन में इंसान ख्यालात से आज़ाद हो जाता है उसका नाम लैल रखा है। कुरान पाक के नुक्ता नज़र से हर इंसान रात और दिन में रद्द-बदल हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम रात को दिन से निकाल लेते हैं और दिन को रात में से निकाल लेते हैं। दिन पर से रात को उधेड़ लेते हैं और रात पर से दिन को उधेड़ लेते हैं। यानी हर इंसान 2 जोन में रद्द-बदल हो रहा है। एक बेदारी का जोन है और दूसरा हाफ का जोन है। बेदारी का जोन शौर का जोन है और हाफ का जोन लाशौर का जोन है। रूहानियत या दुनिया का कोई भी इल्म इन 2 दायरों से आज़ाद नहीं है। दिन के हवास हो या रात के हवास हो, इंसान इन दोनों जोन में कभी ख्यालात से आज़ाद नहीं होता। अब हम यूं कहेंगे, जब इंसान दिन के हवास में होता है तो उसकी सोच की इस्तेदाद कम से कम हो जाती है, यानी वो टाइम स्पेस में बंद हो जाता है। टाइम स्पेस में बंद होकर जब ख्यालात आते हैं उसका नाम दिन के हवास है, लेकिन जैसे ही वो ख्वाब के अंदर दाखिल होता है तो टाइम की रफ्तार तेज़ हो जाती है, और इतनी तेज़ हो जाती है कि शऊर की गिरफ्त से बाहर हो जाती है। शऊर उसे पकड़ नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आजिज़ बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर 4थी जिल्द लिख रहा हूँ। आप सब बच्चों से, बुजुर्गों से, असातिज़ा से दरख्वास्त है कि दुआ करें कि ये काम पूरा हो जाए। इस किताब में टाइम की रफ्तार और स्पेस के फैलाव के बारे में वजाहत की गई है। टाइम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के हवास की रफ्तार 1000 महीनों से ज़्यादा है। इस हिसाब से लैलतुल कदर के हवास की रफ्तार 14 करोड़ 44 लाख मील फी घंटा होती है। हाब में टाइम की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान की नज़र उसको नहीं पकड़ती। मसलन आप रेल में बैठे हैं, रेल 150 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब तो रेलें 300 मील की रफ्तार से चल रही हैं। आप रेल में खिड़की के पास बैठे हैं, बाहर दरख्त भी हैं, तार के खंबे हैं, लेकिन आप इन खंबों को गिन नहीं सकते। क्यों नहीं गिन सकते? इसलिए नहीं गिन सकते कि शऊर की रफ्तार 150 मील फी घंटा की रफ्तार से कम है। खंबा आप देख रहे हैं, जितने दरख्त आपकी नज़रों के सामने गुजर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं, लेकिन आप इस दरख्त की शिनाख्त नहीं कर सके कि ये दरख्त कौन सा है। आप रेल में बैठे हुए हैं, आपके पास एक गेंद है, गाड़ी 200 मील की रफ्तार से चल रही है। आप गेंद रेल की दीवार पर मारते हैं, गेंद आपके हाथ में आ जाती है। ये कैसे मुमकिन हुआ? गाड़ी तो आगे जा रही है, गेंद आपके हाथ में कैसे वापस आ गई? असल बात यह है कि शौरी सेटअप 2 रूह में काम कर रहा है। डब्बे के अंदर का सेटअप और रेल के डब्बे से बाहर का सेटअप अलग अलग है। डब्बे के अंदर की स्पेस महदूद है, लेकिन बाहर की स्पेस का फैलाव ज़्यादा है। आपका शौरी सेटअप जब बाहर के मंजर को देखता है तो दरख्त इतनी तेज़ी से गुजर रहे हैं कि इन दरख्तों को गिना नहीं जा सकता। अंदर का सेटअप ऐसा नहीं है, इसलिए कि आपको दीवार भी नज़र आ रही है, मुसाफिर भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही जाविया नज़र बदलता है, विजन में तब्दीली आ जाती है। जब हम बेदार होते हैं तो हमारी आंख का विजन 3 मील फी घंटे का होता है, और जब हम मुराकबे में होते हैं तो हो सकता है
कि हमारा विजन 1 मिनट में 3 मील का हो जाए, और हो सकता है कि हमारा विजन 1 मिनट में 1000 मील का हो जाए और ज़्यादा हो जाए। इस तरह जब हम ख्वाब में दाखिल होते हैं तो विजन तब्दील हो जाता है, ज़ाविया नज़र बदल जाता है, और ज़ाविया नज़र की तब्दीली से हर नक्शो निगार हमें तब्दील नज़र आता है, जबकि वो तब्दील नहीं होते। आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े होकर बिल्डिंग को देखें तो और तरह नज़र आएगी। आप बिल्डिंग के कोने पर खड़े होकर देखें तो और तरह नज़र आएगी, 3 डायमेंशन में नज़र आएगी। आप छत के ऊपर से बिल्डिंग को देखें तो वो और तरह नज़र आएगी। बिल्डिंग वही है, चूँकि स्पेस तब्दील हो रही है, इसकी वजह से बिल्डिंग मुख्तलिफ नज़र आ रही है। ख्वाब में आदमी का ताल्लुक बेदारी के माहौल से कट जाता है और रफ्तार तेज़ हो जाती है। ख्वाब हो या बेदारी, मरना हो या जीना, इस दुनिया की ज़िंदगी हो या मरने के बाद आलम इराफ की ज़िंदगी हो, किसी भी लम्हा कोई इंसान ख्यालात से आज़ाद नहीं होता। तीसरा दायरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये दायरा वराए पैरासाइकोलॉजी के ज़ुमरे में आता है। किसी रूहानी इंसान के लिए ये असबस ज़रूरी है कि वो अपने किरदार, अपने अफ़ाल, अपने अमाल और वज़ाइफ के बारे में इस बात की तहकीक कर ले कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, किस तरह हो रहा है। आम बात है कि आदमी पानी पिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो ये सोचता ही नहीं कि प्यास क्या चीज़ है, प्यास क्यों लगती है, कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत जिस्मानी मशीनरी में तकाज़े पैदा हो रहे हैं। बॉडी में ऐसी केमिकल चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से आदमी पानी पीने पर मजबूर हो जाता है। रूहानी नुक्ता नज़र से अगर इंसान के अंदर रिसर्च और तफक्कर नहीं होगा तो आदमी रूहानियत नहीं सीख सकता। बिल्कुल इसी तरह अगर साइंटिस्ट के अंदर रिसर्च और तफक्कर नहीं होगा तो कोई इजाद नहीं होगी। इस लेक्चर का खुलासा ये है कि कायनाती अलूम हो या दुनियावी अलूम, 3 दायरों में काम है, 3 दायरों में सफ़र कर रहे हैं, और 3 दायरों में ही उनका इर्तिका हो रहा है, और 3 दायरों के इल्म की महरूमी से ही कोई कौम महरूम होकर जलीलो ख्वार होती है, और 3 दायरों के अलूम हासिल करके ही कोई कौम अरूज पाती है और तरक्की करती है। सवाल, इंसान को ख्यालात आते हैं, कुछ ख्यालात नेक होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। इन बुरे ख्यालात से छुटकारा किस तरह मुमकिन है जबकि पूरे माहौल में बुराई फैली हुई है? जवाब, इंसान और हैवान की तहलीक पर अगर गौर किया जाए तो तहलीक में हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। जिस तरह हम अपने माँ बाप से पैदा होते हैं उसी तरह हैवानात भी पैदा होते हैं। ये बिल्कुल अलग बात है। कोई पेट से पैदा होता है, कोई अंडे से पैदा होता है। इंसानी ज़रूरियात और इंसानी तकाज़े भी वही हैं जो हैवानात में हैं। मसलन भूख लगना, प्यास लगना, सोना, बेदार होना, मौज के लिए जद्दोजहद करना, तलाश करना, अपने बच्चों से प्यार करना, बच्चों की तरबियत करना। एक बात हैवानात में और इंसान में मुश्तरक नहीं है, और वो है अच्छाई और बुराई का तसव्वुर। इंसान को अच्छाई और बुराई का तसव्वुर दूसरी महलूकात से मुमताज़ करता है। कायनात में मौजूद तमाम महलूकात से इंसान को जो चीज़ मुमताज़ करती है वो अच्छाई और बुराई से वाकफियत है। अगर किसी इंसान के अंदर से अच्छाई और बुराई का तसव्वुर निकल जाए तो बकरी और इंसान में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इस पर कोई कानून भी नाफिज नहीं होता। आदमी अगर बाशऊर नहीं है तो उस पर मुकदमा नहीं चलता। अच्छाई और बुराई का तसव्वुर अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने इंसानों में मुंतकिल किया है। इंसान को जिस किस्म का माहौल मुयस्सर आता है वो इससे मुतासिर ज़रूर होता है, कम या ज़्यादा। और पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक में सही मानों में इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाए तो पूरा माहौल पाकीज़ा हो जाएगा। हर आदमी को अच्छे ही अच्छे ख्यालात आएंगे, और अगर बुरे ख्यालात भी आएंगे तो इनकी परसेंटेज इतनी कम होगी कि अच्छाई के ख्यालात उनको दबा लेंगे। मट्टी के तेल का एक डिपो है, आप वहाँ जाएं, कुछ भी ना करें,
2 मिनट खड़े होकर आ जाएं। जब आप वापस आएंगे तो आपके कपड़ों में से भी मिट्टी के तेल की बदबू आएगी, हालांकि आपने तेल को हाथ नहीं लगाया। दूसरा बंदा अतर की दुकान में जाता है, वो अतर की खुशबू पा लेता है, ना अतर की शीशी को हाथ लगा लेता है, थोड़ी देर खड़ा होकर वापस आ जाता है, उसके कपड़ों में खुशबू बस जाएगी। सवाल, खराब माहौल से हम किस तरह बचें और अपनी इस्लाह करें? जवाब, खुद को माहौल से आज़ाद करके ऐसा वक्त मुतय्यन किया जाए कि जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र करें और मुराकबा करें। रात को दुनिया के झमेलों से आज़ाद होकर अपना मुहासबा करें। सारे दिन गुनाहों की जमा की हुई गठड़ी को खोलें और एक एक करके कोताही को अपनी याद करें। नमाज कायम करें। सवाल, मौत के बाद इंसान किस जगह जाता है? क्या हम उसे हाफ के जोन से तशबीह दे सकते हैं? जवाब, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम रोज मर जाते हो, सुबह को हम जिंदा कर देते हैं। तो हाब और मौत में फ़र्क ये है कि हाब में आदमी दोबारा इस दुनिया में मुंतकिल हो जाता है। मौत के बाद कोई इंसान उस जिस्मानी वजूद के साथ दुनिया में नहीं आता। जज्बात कहाँ बनते हैं? प्रोफेसर जामी साहब, उस्ताद इकराम, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ख्यालात व तसव्वुरात जिस्म पर किस तरह असरअंदाज होते हैं? जिंदगी का कोई रुख हो, सेहतमंदी का रुख हो, बीमारी का हो, परेशानी का हो, खुशी का हो, एहसास कमतरी या एहसास बरतरी का रुख हो, ये तमाम अमाल, तासरात, जज्बात, ख्यालात किताबें हैं। उस वक़्त 6 अरब की आबादी है। 6 अरब की आबादी में एक इंसान भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसकी ज़िंदगी का दारोमदार ख्यालात के ऊपर है। जब तक किसी चीज़ के बारे में ख्याल वारद नहीं होता, वो चीज़ वाक़या नहीं होती। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मसलन हम रात को सोते हैं, सुबह को बेदार हो जाते हैं। सुबह के मामूलात में हमारा एक मामूल ये है कि हमें दफ्तर जाना है। अगर हमें बेदार होने के बाद दफ्तर जाने का ख्याल ना आए तो हम दफ्तर नहीं जाएंगे। यही हाल खाने पीने का है। मरीज़ को भूख नहीं लगती, मरीज़ खाना क्यों नहीं खाता? खाना इसलिए नहीं खाता कि उसे खाने की इत्तला नहीं मिली। अला हाज़ुल क्या ज़िंदगी के जितने भी मामूलात हैं, इनमें से कोई अमल ऐसा नहीं है कि जो ख्याल आए बगैर इंजाम दिया जा सके। कुलिया ये बना कि ज़िंदगी का दारोमदार इस बात पर है कि जब कोई काम आप करना चाहें तो पहले आपको ख्याल आएगा और उसके बाद आप वो अमल करेंगे। हमारी पूरी ज़िंदगी इत्तलात पर कायम है। अगर आपका जहन आपके शऊर को इस बात से मतला नहीं करेगा कि आपको पानी पीने की ज़रूरत है, तो आप पानी नहीं पी सकते। अगर आपका जहन आपके शऊर को इस बात से मतला नहीं करेगा कि आपको अब नींद की ज़रूरत है, आप सो नहीं सकते। इंतहा ये है कि आपको सोने की गोलियां, स्लीपिंग पिल्स भी दे दी जाएंगी, फिर भी आपको नींद नहीं आएगी। नींद की गोली देने का मतलब ही ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको सुलाती है वो मुतहर्रिक हो जाए। ज़िंदगी का कोई एक अमल पैदाइश से लेकर मौत तक ऐसा नहीं जो आपको ख्याल आए बगैर आप कर सकें। ख्याल एक इत्तला है। इंसान के अंदर एक ऐसी एजेंसी है जो एजेंसी इंफॉर्मेशन कबूल करती है, और वो इंफॉर्मेशन जिस किस्म की होती है उस किस्म के तासुरात कायम हो जाते हैं। मसलन एक आदमी घर में बैठा है, उसको एक बुरी इतला मिली। अल्लाह ताला सबके बच्चों को महफूज रखे कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज़िंदगी में खलचल बर्पा हो जाएगी। सिवाय परेशानी के और कोई बात जहन में नहीं आएगी। जब तक आप बच्चे को देख नहीं लेंगे, जब तक आप बच्चे को अस्पताल नहीं पहुंचा देंगे, जब तक आप इसकी इतला या इन्फॉर्मेशन के मुकाबले में आपको तसल्ली नहीं हो जाएगी कि एक्सीडेंट खतरनाक नहीं है, आप मुतमईन नहीं होंगे। आपको ये इतला मिली कि बेटी अच्छे नंबरों से पास हो गई है, अभी आपने उसकी मार्कशीट नहीं देखी, बेटी ने आकर बताया भी नहीं,
लेकिन इस इंफॉर्मेशन के तासरात खुशी की शक्ल में मरतब होंगे। मफहूम ये निकला कि खुशी हो या गमी, उसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन से है। सवाल, इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? जवाब, इस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक रूह से है। सवाल, रूह से जिस्म का ताल्लुक क्यों और किस तरह है? जवाब, हम देखते हैं कि रूह जिस्म से रिश्ता तोड़ लेती है तो किसी भी इंफॉर्मेशन का असर जिस्म पर मुरतब नहीं होता। एक आदमी मर गया, उसके कान में कहा जाए तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है या बेटा पैदा हुआ है, तो इस पर कोई असर नहीं होगा। क्यों? कान भी हैं, दिमाग भी है। बात यह है कि रूह ने उस फिजिकल बॉडी से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अब हम इस तरह कहेंगे कि जब तक रूह का ताल्लुक जिस्म से रहता है उस वक्त तक इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे ही रूह का जिस्म से रिश्ता मुनक़ता हो जाता है, इंफॉर्मेशन का अमल ख़त्म हो जाता है। हम लेक्चर में बता चुके हैं कि मादी जिस्म रूह का लिबास है। जब तक रूह लिबास को पहने रहती है उसमें हरकत रहती है, बल्कि दिमाग में ख्यालात आने का ज़रिया हैं। ख्यालात कहाँ से आते हैं? ये तो आप समझ गए होंगे कि ख्यालात दिमाग से नहीं आते। अगर ख्यालात दिमाग से आते तो मुर्दा जिस्म भी ख्यालात को कबूल करता। खुशी और गमी से जिस्म मुतासिर नहीं होता, बल्कि रूह का लिबास मुतासिर होता है। जब तक रूह उस जिस्म को पहने रहती है, असरात मुरतब होते रहते हैं, और रूह जब उस जिस्म के लिबास को यानी जिस्म को उतार देती है तो कोई तासुर कायम नहीं रहता। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एहतताम को पहुंचा।